तो अमेरिकी चुनाव में अभी आखिरी नतीजे का इंतजार है, लेकिन अब तक जो भी नतीजे आए उससे वहां की राजनीतिक तस्वीर धीरे धीरे साफ होती जा रही है। इस बीच ट्रंप और बाइडेन ने अपने अपने दावों से बता दिया है कि अभी इंतजार खत्म नहीं हुआ, जीत की उम्मीद दोनों पक्षों को है। अमेरिका में नया सवेरा होने वाला है। बदलाव के लिए जो वोट लोगों ने दिए हैं उसकी तस्वीर साफ होती जा रही है। ये लड़ाई भरोसे की है, विश्वास की है, लिहाजा आंकड़ों की बाजीगरी में भरोसा और विश्वास पर हर कोई खरा उतरने का दावा भी पुरजोर तरीके से कर रहा है। This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. We did win it. Ensure the integrity for the good of this nation. This is a very big moment. This is a major fraud in our nation. We want the law to be used in a proper manner. I'm here to tell you tonight, we believe we're on track to win this election. We knew because of the unprecedented early vote and the mail-in vote that it's going to take a while. We're going to have to be patient until the hard work of tallying the votes is finished. And it ain't over till every vote is counted, every ballot is counted. But we're feeling good. We're feeling good about where we are. शुरुआती दौर जो बाइडेन के नाम रहा, धीमी रफ्तार से ही सही जीत के आंकड़े आगे बढ़ते रहे। उसके साथ साथ डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स की धड़कनें भी बढ़ती रही। एक और रिजल्ट के लिए नेताओं की बेसब्री उनके चेहरे पर दिखी तो दोनों खेमे के समर्थकों में भी गजब का उत्साह दिखा। रुझान और परिणामों के साथ दावेदारी भी तेज होती गई। सबसे पहले राष्ट्रपति पद के डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन आए और ऐलान कर दिया कि वो शानदार जीत की ओर बढ़ रहे हैं। We feel good about where we are. We really do. I'm here to tell you tonight, we believe we're on track to win this election. We knew because of the unprecedented early vote and the mail-in vote that it's going to take a while. We're going to have to be patient until the hard work of tallying the votes is finished. And it ain't over till every vote is counted, every ballot is counted. But we're feeling good. We're feeling good about where we are. लेकिन इन दावों के बीच रिपब्लिकन उम्मीदवार ट्रंप ने चुनाव प्रक्रिया पर ही सवाल उठा दिया। उन्होंने अभी भी जारी मतदान को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाने का ऐलान कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग जनादेश चुराने की फिराक में हैं। I want to thank the American people for their tremendous support. Millions and millions of people voted for us tonight. And a very sad group of people is trying to disenfranchise that group of people. And we won't stand for it. We will not stand for it. आशंकाओं के उलट ट्रंप ने इस बार के राष्ट्रपति चुनावों में कई अहम जगहों पर बड़ी फतेह हासिल की है। जब वो अपने फैंस के बीच पहुंचे तो उन्होंने इसके लिए सभी का धन्यवाद किया। The citizens of this country have come out in record numbers. This is a record. There's never been anything like it. To support our incredible movement, we won states that we weren't expected to win. Florida, we didn't win it. We won it by a lot. And we won the great state of Ohio. We won Texas. We won Texas. We won Texas by 700,000 votes, and they don't even include it in the tabulations. It's also clear that we have won Georgia. We're up by 2.5% or 117,000 votes with only 7% left. They're never going to catch us. They can't catch us. Likewise, we've clearly won North Carolina. अभी फाइनल रिजल्ट की घोषणा बाकी है। ऐसे में ट्रंप और बाइडेन के दावों के बीच कौन विजेता बनता है, इसके लिए आंकड़ों के आखिरी पड़ाव तक सभी को इंतजार करना पड़ेगा।
वॉशिंगटन में प्रतीक्षा घिल्डियाल के साथ आज तक ब्यूरो। तो भारत में ये शाम का वक्त है और अमेरिका में नया सवेरा हो रहा है। इसके साथ ही वहां सत्ता की तस्वीर भी बदल सकती है। कौन होगा वहां का राष्ट्रपति, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। अमेरिकी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि चुनाव का नतीजा सामने आए और सस्पेंस खत्म। चुनाव के नतीजों के इंतजार में अमेरिकियों के लिए ये सबसे लंबी रात लग रही है, लिहाजा उसे काटने के लिए ये शाम से ही धूम धड़ाका जारी है। देखिए ट्रंप का मुखौटा पहने इस शख्स के साथ लोग वॉशिंगटन हो, मियामी हो या फ्लोरिडा, हर शहर में जोश अपने चरम पर है। एक तरफ नतीजों को लेकर धड़कनें तेज हैं, तो दूसरी तरफ मस्ती भी फुल है। अमेरिका में लोकतंत्र के जश्न की ये एक और खूबसूरत तस्वीर। नए राष्ट्रपति के इंतजार में सड़कों पर अमेरिकियों का जोश उछाल मार रहा था, लेकिन ऊपर से देखे तो हर शहर खामोश नजर आते हैं। ये आसमान से ली गई न्यूयॉर्क की खूबसूरत तस्वीर है। सूरज ढलने के बाद दुनिया की महाशक्ति अमेरिका का पावर हाउस यानी व्हाइट हाउस भी सफेद रोशनी में शांत नजर आ रहा है। व्हाइट हाउस को भी इंतजार है उस सुबह का जब ये तय हो जाएगा कि यहाँ किसकी सल्तनत। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जुबानी जंग के लिहाज से सबसे गर्म और कड़वे अनुभव वाला माना जा रहा है। ट्रंप और बाइडेन ने एक दूसरे पर इतने तीखे तीर चलाए जिसकी मिसाल ढूंढे नहीं मिलती। Joe Biden is a corrupt politician who raked in millions from China while giving them your jobs. He's a corrupt politician. You see it? Now they say the laptop Schiff, watermelon head, Schiff. That laptop was produced by Russia. Here we go again. Russia. Here we go again. Can you imagine what they must think of it? These people are crazy. No other nation can touch us. No other nation can lead us. We can lead by the power of our example, not just the example of our power. The only thing that can tear America apart is America itself. And that's exactly what Donald Trump's been trying to do from the very beginning. Divide America, pitting Americans against one another, rural versus urban, based on race, gender, ethnicity, national origin, or religion. That's wrong. That's not who we are. अमेरिकी चुनाव की कुछ और रंग देखिए। वोट डालने के लिए इंडियाना में वोटर्स की लंबी कतार लग गई। ऐसा ही नजारा पेंसिल्वेनिया में नजर आया। कोरोना के खौफ के बावजूद अमेरिका में इस बार रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई, लेकिन वोट किसको व्हाइट हाउस का बिग बॉस बनाएगा, इसका इंतजार सभी को है। चुनावी नतीजे से पहले बाइडेन पेंसिल्वेनिया राज्य के स्कैंटन में स्थित अपने बचपन के घर गए तो उनका उत्साह बढ़ाने के लिए बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। और इसी के साथ हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन इससे जुड़ी हर खबर आप तक सबसे पहले आज तक पहुंचाता रहेगा। शाम 5 बजे दंगल भी होगा, इसी को लेकर अमेरिका में तनाव है क्योंकि फंस गया चुनाव। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं, आप देख रहे हैं आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।